Hi guys, this is Shikha Agrawal. Welcome to my channel. In this video, we will be continuing our polity series, Indian polity revision through MCQs. So our today's topic is Union and its territory. So friends, this is part 1 of the Indian Constitution. Remember in my previous video, I have told you that we have 22 parts in our Constitution. और उसमें से आज हम फोकस करेंगे पार्ट 1 जिसमें 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4. We will be discussing each and every article in details. We will be seeing how new state has been formed. इसका जो नया राज्य का जो प्रोसीजर है बनने का वो कैसे होता है, हम वो सारी चीज डिटेल्स में देखते हैं. So watch the video till the end and enjoy learning, friends. Stay tuned. Let's move to the first question. पहला प्रश्न है, according to the article 1 of Indian Constitution, India is option number A, group of states, option number B, federation of states, option C, confederation of states, or the option D, the union of states. So your timer starts right now. So just remember the friends, according to the article 1, it is D, the union of states. Let's see the explanation. Article 1 says that India, that is Bharat, shall be union of states. Union of states का क्या मतलब होता है friends? Let us see this thing. So according to the article 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be union of states. सो टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें, इसमें 3 चीज आती है. एक तो स्टेट्स आएंगी, देन यूनियन टेरिटरीज आएगी, एंड एनी सच टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड. मींस इन फ्यूचर इंडिया ने अगर कोई और टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स में ही कंसिडर किया जाएगा. वन मोर थिंग, जस्ट रिमेंबर द नेम एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स हैज बीन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में जितनी भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स की लिस्ट, नेम एंड यूनियन टेरिटरीज सब कुछ वेल डिफाइंड है Schedule 1 में. Just remember these 2 points. Now let us move to the next question, friends. Who among the following has the executive power to admit a state in the union or establish new states? Options are, is it Parliament or Lok Sabha, political parties or central government? Your timer start now. So friends, the answer is Parliament. How we get to know? It is clearly mentioned in the Article 2 of the Indian Constitution. It provides that Parliament may by law admit into the union or establish new states. ठीक है? Is it clear? किसके पास पावर है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास. Now just remember आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये भी मेंशन करता है, पार्लियामेंट में फॉर्म अ न्यू स्टेट by separating 2 states or by uniting states. The parliament can increase or diminish the area of any state or can alter the boundary and the name of the states. तो आपने देखा दोनों ही आर्टिकल्स में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये राइट्स, ये पावर किसको दिया है? पार्लियामेंट को दिया है. नाउ एक क्वेश्चन, एक डाउट आ सकता है कि आर्टिकल 2 के हिसाब से भी न्यू स्टेट फॉर्म हो रही है और आर्टिकल 3 के हिसाब से भी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? जस्ट सी दी लाइन्स वेरी केयरफुली. आर्टिकल 2 में आप एडमिट कर सकते हो, मीन्स कोई नई स्टेट को इंक्लूड किया जा सकता है विद इन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि 1975 सिक्किम में किया था. ये एडमिट करने वाला प्रोसीजर अलग है. और आर्टिकल 3 में इट इज सेड दैट द न्यू स्टेट कैसे बन रही है? डिफरेंस है ना, न्यू स्टेट बन रही है बाय सेपरेटिंग 2 स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग स्टेट्स. तो ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following is not correct in the matter of formation of new states? बहुत ध्यान से देखिएगा, not correct पूछा है, राइट? ऑप्शन ए, Parliament may by law form a new state. Option B, such law shall contain provisions
for the amendment of the Schedule 1 and Schedule 4 of the Constitution. Option C, such law shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purpose of Article 368. And option D, no bill for enacting such law shall be introduced in the Parliament unless it has been referred to the legislature of the states whose area, boundaries or name is affected. Your timer starts now. ऑप्शन 1 इज करेक्ट फ्रेंड्स. ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट. जब भी कोई न्यू स्टेट बनता है तो उसकी इंफॉर्मेशन स्केड्यूल 1 में भी दी जाएगी, स्केड्यूल 4 में भी दी जाएगी एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट फ्रेंड्स. जस्ट रिमेंबर आर्टिकल 4 यही कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंजेस करते हैं तो स्केड्यूल 1 और 4 में भी चेंजेस होंगे but it won't be considered as an amendment in the Indian Constitution under Article 368. इसका मतलब अगर कोई नया स्टेट बनता है या नया यूनियन टेरिटरी, जैसे अभी रिसेंटली बना था जम्मू कश्मीर को, जब आर्टिकल 370 हट गया तो 2 यूनियन टेरिटरीज बने हैं हमारे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो चेंजेस आए हैं स्केड्यूल 1 में कि पहले 7 यूटीज थी प्लस 2 यूटीज ऐड हो गई और अभी एक और यूनियन टेरिटरी कम हुई है. दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को इंटीग्रेट कर दिया है. कमेंट बिलो एंड लेट मी नो बाय विच अमेंडमेंट इट इज डन. राइट नाउ वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट. तो इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं तो ये मेंशन कहाँ होंगे? स्केड्यूल 1 में. अब स्केड्यूल 4 क्या कहता है? स्केड्यूल 4 बोलता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा. अभी तो फिलहाल इसमें एलोकेट नहीं करी है बट इस स्केड्यूल 4 में भी चेंजेस होंगे. और कोई भी बिल अगर ये आता है तो मैं इसका प्रोसीजर बता देती हूँ कैसे होता है ये. तो इसमें आंसर होगा आपका सी, क्योंकि ये रॉन्ग है, क्योंकि पूछा क्या है? नॉट करेक्ट. सो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से कोई स्टेट बन सकती है. कैसी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कि सिंपल चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से कोई भी स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है. नो स्पेशल प्रोसीजर एज इन द केस ऑफ अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड. आर्टिकल 4 कहता है such law shall not be deemed to an amendment of the Constitution for the purpose of 368. So option C is wrong, right? Hope it is clear.